स्वर्गीय पिता, धन्यवाद तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। इस सुबह के सुंदर समय फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु परमेश्वर, इस साल में प्रभु लॉकडाउन में प्रभु परमेश्वर जो हमने आपको प्रभु इस तरीके से ज़ूम ऐप के द्वारा प्रभु तेरी स्तुति महिमा की थी। और प्रभु हमारी ये लास्ट ज़ूम ऐप प्रार्थना सभा है और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने हमको इन दिनों में 9 महीने चलाया मेरे प्रभु पिता। इसके लिए तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ। और जो भी कार्य तूने हमारे लिए किए हैं इसलिए धन्यवाद मेरे प्रभु पिता। सारा आदर और महिमा देते हुए प्रभु परमेश्वर संपूर्ण प्रार्थना सभा तेरे पवित्र हाथों में मैं समर्पित करता हूँ। और हर एक परिवार जो अपने घर में बैठा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर तेरे उपस्थिति में प्रभु परमेश्वर हर एक को चला, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सबको चला। और आज की गाने की सभा चलाने वाले, गाने वाले, बजाने वाले सबों को प्रभु तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा छू ले। और पूरा हफ्ता आपने हमें सबको संभाला, मंडे टू संडे प्रभु परमेश्वर हम सबको पारिवारिक जीवन में, हमारे पर्सनल जीवन में प्रभु संभाला। इसलिए धन्यवाद प्रभु पिता। सारे उपकारों के लिए तुझे धन्यवाद। जो भी पाप अपराध गुनाह प्रभु हमसे हुए हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु कलीसिया की ओर से। प्रभु परमेश्वर जो भी जाने अनजाने में प्रभु पाप में गलतियां हुई प्रभु क्षमा कर और तेरे लहू से हमें धोकर शुद्ध कर। और हमारी प्रार्थना को तू कबूल करना प्रभु। आज की संपूर्ण प्रार्थना सभा शुरू से लेकर अंत तक तेरे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंप देता हूँ। और परमेश्वर हालेलुया हर व्यक्ति को प्रभु अपने मुख से प्रभु तेरी स्तुति करने के लिए और गीत गाने के लिए प्रभु सहायता कर, ताकि हर एक के द्वारा तेरी महिमा मिले, तुझे महिमा मिले और हर एक व्यक्ति आराधना में भाग ले प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया हालेलुया। कर्तव्य नाम तुम्हें उंडाहूं बढ़िया है। जैसे पास्टर ने बताया कि हमारा लास्ट ऑनलाइन प्रेयर होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। கடந்த நாட்கள் கண்மணி போல காத்து மட்டுமாய் தேவன் நம்மை கொண்டு வந்த மகா கிருபைக்காக நன்றி. தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படியாக ஒரு சில தமிழ் பாடல்களை பாடி நாம் தேவனுக்கு மகிமைப்படுத்துவோம். ஆமென். Thank you Father Jesus. Hallelujah. எல்லோரும் தெரிந்த பாடல். Hallelujah. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஆராதனை கீதங்கள்ல 13வது பாடல், சாங் நம்பர் 13. ஆராதனை கீதங்கள்ல 13வது பாடல். Hallelujah Jesus. நன்றி 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 ராஜா. Thank you Father. Thank you thank you thank you. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. நன்றி நன்றியோடு துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். ஆராதனைக்கு 13 சாங் நம்பர் 13. உம் பாதம் பணிந்தேன் என்னாலும் துதியே உம்மை அன்றி யாரை பாடுவேன் இயேசையா. ஆமென். ஹalleluya ஜீசஸ். உம் பாதம் பணிந்தேன் என்னாலும் துதியே உம்மை அன்றி யாரை பாடுவேன் இயேசையா. உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே இயேசையா. உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே. பரிசுத்தமே பரவசமே பரமே கருளே வரம் பொருளே. பரிசுத்தமே பரவசமே கருளே வரம் பொருளே. தேடினதால் கண்டே பாடிட பாடல்கள் நீந்தளித்தீர். தேடினதால் கண்டடைந்தே பாடிட பாடல்கள் நீந்தளித்தீர். உம் பாதம் பணிந்தேன் என்னாலும் துதியேன் உம்மை அன்றி யாரை பாடுவேன் இயேசையா. உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே இயேசையா. உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே. புது எண்ணெயால் புது பலத்தால் புதிய கிருபை புது கவியால். புது எண்ணெயால் புது பலத்தால் புதிய கிருபை புது கவியால்.
நிரப்பினிதான் நடத்துகின்றேன் நூதன சாமில் சேர்ந்திடுவேன் நிரப்பினிதம் நடத்துகின்றேன் நூதன சாலோமில் சேர்ந்திடுவேன் உம் பாதம் பணிந்தே நாளும் துதியே உம்மை அன்பே யாரை பாடுவேன் இசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே இசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே நெருக்கத்திலே உம்மை அழைத்தே நெருங்கே உதவி எனக்களித்தேன் நெருக்கத்திலே உம்மை அழைத்தே நெருங்கே உதவி எனக்களித்தேன் திசை கட்டங்கோ மலைந்திடாமல் தீவிரம் வந்தனை தாங்குகின்றேன் திசை கட்டங்கோ மலைந்திடாமல் தீவிரம் வந்தனை தாங்குகின்றேன் பாதம் பணிந்தேன் என்னாலும் பொதியே உம்மை அன்பி யாரை பாடுவேன் இசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே இசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே என் முன் செல்லும் உன் சமூகம் எனக்கு அளிக்கும் நிலை பாருதல் உமது போலும் தனியும் உண்மையாய் என்னையும் தேற்றிடுதே உமது கொலும் தனியும் உண்மையாய் என்னையும் தேற்றிடுதே உம் பாதம் பணிந்தேன் என்னாலும் துதியே உம்மை அன்பி யாரை பாடுவேன் இசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே இசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே கனி செடி நீர் நிலைத்திருக்கோ கொடியாய் அடியேன் பகத்திடங்க கிளை நறுக்கி கரை பிடுங்கி கர்த்தரே காத்தன்னை சுத்தம் செய்தி உம் பாதம் பணிந்தேன் என்னாலும் துதியே உம்மை அன்பி யாரை பாடுவேன் இசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே இசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே என் இதய தெய்வமே நீர் எனது இறைவாருயிரே நேசிக்கின்றேன் இயேசுவே ஓம் நேசம் என்றும் கண்டிடுவேன் நேசிக்கிறேன் இயேசுவே ஓம் நேசமுகம் என்றும் கண்டிடுவேன் பாதம்
பணிந்தேன் என்னாலும் துதியே உம்மை அன்பை யாரை பாடுவேன் இசையா உந்தனந்து உள்ளம் பொங்குதே இசையா உந்தனந்து உள்ளம் பொங்குதே சீருடனே பேருடனே சிறந்து ஜொலிக்கும் கொடி முடியல் சீருடனே பேருடனே சிறந்து ஜொலிக்கும் கொடி முடியல் சீக்கிரமாய் சேர்ந்து விவீர் சீயோனை வாஞ்சித்து நாடுகிறேன் சீக்கிரமாய் சேர்ந்திடுவீர் சீயோனை வாஞ்சித்து நாடுகிறேன் உம் பாதம் பணிந்தேன் என்னாலும் துதியே உம்மை அன்பை யாரை பாடுவேன் இசையா உந்தனந்து உள்ளம் பொங்குதே இசையா உந்தனந்து உள்ளம் பொங்குதே ஹல்லேலூயா கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும்படியாக நன்றி. கடந்த நாள் முழுவதும் கடந்த வாரம் முழுவதும் கண்மணி போல காத்து மட்டுமா தேவன் வழிநடத்தி வந்தமா கிருமைக்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தும்படியாக மற்றொரு பாடலை படிப்போம். வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எல்லாத்துக்கும் இந்த பாடல் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. பழைய கீர்த்தனை பாடல், நல்ல கருத்துள்ள பாடல். சீரேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்கலம், அதி திரியேக நாதனுக்கு சுபமங்கலம். எல்லோரும் தெரிந்த பாடல், கைகளை தட்டி ஆரவாரமாக படிப்போம். பழைய பாடல், நல்ல கருத்துள்ள பாடல். ஆமென். சீரேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்கலம், அதி திரியேக நாதனுக்கு சுபமங்கலம். சீரேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்கலம், அதி திரியேக நாதனுக்கு சுபமங்கலம். பாரேரே நீதனுக்கு பரம பொற்பாதனுக்கு, பாரேரே நீதனுக்கு பரம பொற்பாதனுக்கு, நேரேறு போதனுக்கு நித்திய சங்கீதனுக்கு, நேரேறு போதனுக்கு நித்திய சங்கீதனுக்கு. சீரேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்கலம், அதி திரியேக நாதனுக்கு சுபமங்கலம். ஆதி சர்வேசனுக்கு ஈசனுக்கு மங்களம், நவீர பிரகாசனுக்கு ஈசனுக்கு மங்களம். ஆதி சர்வேசனுக்கு ஈசனுக்கு மங்களம், அகில பிரகாசனுக்கு நேசனுக்கு மங்களம். நீதிபரபாலனுக்கு நித்திய குணாலனுக்கு, நீதிபரபாலனுக்கு நித்திய குணாலனுக்கு, ஓதுமனு கோலனுக்கு உயர் மனுவேலனுக்கு, ஓதுமனு கோலனுக்கு உயர் மனுவேலனுக்கு. சீரேசு ராஜனுக்கு ஜெயமங்கலம், அதி திரியேக நாதனுக்கு சுபமங்கலம். மானாபிமானனுக்கு வானனுக்கு மங்களம், வளர்கலை ஞானனுக்கு ஞானனுக்கு மங்களம். வானாபிமானனுக்கு வானனுக்கு மங்களம், வளர்கலை ஞானனுக்கு ஞானனுக்கு மங்களம். காணானல்லேசனுக்கு கன்னிமரி சேயனுக்கு, காணானல்லேயனுக்கு கன்னிமரி சேயனுக்கு, கோணாசகாயனுக்கு குருபத்தலேயனுக்கு, கோணாசகாயனுக்கு குருபத்தலேயனுக்கு. சீரேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்கலம், அதில் திரியேக நாதனுக்கு சுபமங்கலம். 10 லட்சம் பக்தனுக்கு சுத்தனுக்கு மங்களம், பரமபதத்தனுக்கு நித்தனுக்கு மங்களம். 10 லட்சம் நத்தனுக்கு சுத்தனுக்கு மங்களம், பரமபதத்தனுக்கு நித்தனுக்கு மங்களம். சத்திய விசாரனுக்கு சர்வாதிகாரனுக்கு, சத்திய சாரனுக்கு சர்வாதிகாரனுக்கு,
பக்தருபகாரனுக்கு பரமகுமாரனுக்கு பக்தருபகாரனுக்கு பரமகுமாரனுக்கு ஸ்ரீரேசுநாதனுக்கு ஜெயமங்கலம் அதிதிரியேகநாதனுக்கு சுபமங்கலம் ஸ்ரீரேசுநாதனுக்கு ஜெயமங்கலம் அதிதிரியேகநாதனுக்கு சுபமங்கலம் பாரேறு நீதனுக்கு பரம பொற்பாதனுக்கு பாரேறு நீதனுக்கு பரம பொற்பாதனுக்கு நேரேறு போதனுக்கு நித்திய சங்கீதனுக்கு நேரேறு போதனுக்கு நித்திய சங்கீதனுக்கு ஸ்ரீரேசுநாதனுக்கு ஜெயமங்கலம் அதிதிரியேகநாதனுக்கு சுபமங்கலம் ஆதி சர்வேசனுக்கு ஈசனுக்கு மங்களம் அகில பிரகாசனுக்கு நேசனுக்கு மங்களம் ஆதி சர்வேசனுக்கு ஈசனுக்கு மங்களம் அகில பிரகாசனுக்கு நேசனுக்கு மங்களம் நீதிபரன் பாலனுக்கு நித்திய குணாலனுக்கு நீதிபரன் பாலனுக்கு நித்திய குணாலனுக்கு போதும் அனுகூலனுக்கு உயர் மனுவேலனுக்கு போதும் அனுகூலனுக்கு உயர் மனுவேலனுக்கு ஸ்ரீரேசுராஜனுக்கு ஜெயமங்கலம் அதிதிரியேகநாதனுக்கு சுபமங்கலம் ஸ்ரீரேசுநாதனுக்கு ஜெயமங்கலம் அதிதிரியேகநாதனுக்கு ஜெயமங்கலம் பாரீரு நீதனுக்கு பரம பொற்பாதனுக்கு பாரீரு நீதனுக்கு பரம பாதனுக்கு நேரேறு போதனுக்கு நித்திய சங்கீதனுக்கு நேரேறு போதனுக்கு நித்திய சங்கீதனுக்கு அதனுக்கு ஜெயமங்கலம் அதிதிரியேகநாதனுக்கு சுபமங்கலம். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும்படியாக கடைசியாக ஒரு பாடலை பாடுவோம். கடைசி பாடல் ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம். எல்லாம் தெரிந்த பாடல் ஜெபத்தோட்ட ஜெய கீதங்களிலே 289வது பாடல் அன்பு கூறுவேன். எல்லோரும் தெரிந்த பாடல் அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஹல்லேலூயா அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஹல்லேலூயா ஜீசஸ். நன்றி ராஜா. தேங்க்யூ ஃபாதர். நன்றி நன்றி. எல்லோரும் கையில் தட்டி ஆரவாரமா படிப்போம். ஆமென். தேங்க்யூ ஃபாதர். நன்றி நன்றி. ஆமென். அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய் அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய் முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 எபினேசரே எபினேசரே இதுவரையில் உதவி நீரே உதவி நீரே இதுவரையில் உதவி நீரே உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை ஆராதனை. எஸ் லார்ட் ஆமென். Thank you Father. நன்றியோடு துதிக்கிறோம் 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 ஆண்டவரே. ஆமென். ஆராதனை 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 எல்ரோயி எல்ரோயி என்னை கண்டீரே நன்றி
ஐயா. எல்ரோயி, எல்ரோயி, என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா. என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா. உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், முழு பலத்தோடு அன்பு கோருவேன். ஆராதனை 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 ஆராதனை. யெகோவா ரஃபா, யெகோவா ரஃபா, சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா. யெகோவா ரஃபா, யெகோவா ரஃபா, சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா. சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா. உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே, முழு பலத்தோடு அன்பு கோருவே. ஆராதனை 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 அப்பா. ஆராதனை 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 அன்பு கோருவேன் இன்னும் அதிகமாய். ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய். அன்பு கோருவேன் இன்னும் அதிகமாய். ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய். முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், முழு பலத்தோடு அன்பு கோருவேன். ஆராதனை 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 அப்பா. ஆராதனை 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 ஆராதனை. எஸ் லார்ட், நன்றியோடு துதிக்கிறோம், சோதரிக்க ஆண்டவரே. இந்த ஆராதனை முற்றசனம் எங்களோடு கூட இருந்த மகா கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிற ஆண்டவரே. மீதியான நேரத்தை பரிசுத்த கரத்திலே தாழ்த்தி போடுகிற ஆண்டவரே. நீர் ஹல்லேலூயா எங்களை மறைத்து நீர் வெளிப்படும்படியாக துதிக்கிறோம், சோதர ஆண்டவரே. எல்லாவற்றையும் பரிசுத்த கரத்திலே தாழ்த்தி ஒப்படைக்கிறாச்சா. பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க, பாதுகாத்து வழி நடத்துங்க, தேவைகளை சந்திங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் நானிய நாமத்தை வேண்டி கேட்க நல்ல பிதாவே, ஆமென் ஆமென். ஜீசஸ். Yeah. Okay. New song book. कड़ा गया तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ. आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे. आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे. मारा गया गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ. मारा गया गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ. फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान. फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान. आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे. यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे. रोगियों को तूने चंगा किया, मुर्दों को तूने जिंदा किया. जिंदा किया. फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान. फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान. आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे. आज भी यीशु
आएगा, हम सबको वो ले जाएगा। क्रूस पर यीशु आएगा, हम सबको वो ले जाएगा। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। Oh glory, hallelujah, है कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे, सबको बताएंगे। रोगियों को तूने चंगा किया, मुर्दों को तूने जिंदा किया, मुर्दों को तूने जिंदा किया। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे, यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। बादलों पर यीशु आएगा, हम सबको वो ले जाएगा। बादलों पर यीशु आएगा, हम सबको वो ले जाएगा। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे, आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। Praise God, hallelujah. Thank you. Git number 13, same book, new book, song number 13. ओ आत्मा परमात्मा मेरे दिल में आजा आत्मा, ओ आत्मा परमात्मा। ओ आत्मा परमात्मा, ओ आत्मा परमात्मा मेरे दिल में आजा आत्मा, ओ आत्मा परमात्मा, ओ आत्मा परमात्मा। और मेरे साथ, ओ आत्मा परमात्मा, ओ आत्मा परमात्मा मेरे दिल में आजा आत्मा, ओ आत्मा परमात्मा, ओ आत्मा परमात्मा। मुझे यीशु पास ले चल आत्मा, मुझे उसकी बातें तू समझाओ आत्मा, मुझे यीशु पास तू ले चल पावन आत्मा, मुझे उसकी बातें तू समझाओ आत्मा। मेरे संग संग चलना आत्मा, मुझे हिम्मत देना आत्मा, मेरे संग संग चलना आत्मा, मुझे हिम्मत देना आत्मा, ओ आत्मा परमात्मा परमात्मा, ओ आत्मा, ओ आत्मा परमात्मा, ओ आत्मा, ओ आत्मा, ओ आत्मा परमात्मा, ओ आत्मा परमात्मा। मुझे अपनी शक्ति दे दे पावन आत्मा, यीशु की भक्ति दे दे पावन आत्मा, मुझे अपनी शक्ति दे दे पावन आत्मा, यीशु की भक्ति दे दे पावन आत्मा। मुझे नया बना दे आत्मा, नव जीवन दे दे आत्मा, मुझे नया बना दे आत्मा, नव जीवन दे दे आत्मा, ओ आत्मा परमात्मा परमात्मा, ओ आत्मा, ओ आत्मा परमात्मा परमात्मा, ओ आत्मा, ओ आत्मा परमात्मा,
यीशु पास तू ले चल पावन आत्मा, मुझे उसकी बातें तू समझा वो आत्मा, मुझे यीशु पास तू ले चल पावन आत्मा, मुझे उसकी बातें तू समझाओ आत्मा, मेरे संग संग चलना आत्मा, मुझे हिम्मत देना आत्मा, मेरे संग संग चलना आत्मा, मुझे हिम्मत देना आत्मा, वो आत्मा परमात्मा परमात्मा वो आत्मा, वो आत्मा परमात्मा परमात्मा वो आत्मा, वो आत्मा परमात्मा, वो आत्मा परमात्मा, मुझे अपनी शक्ति दे दे पावन आत्मा, यीशु की भक्ति दे दे पावन आत्मा, सिंग विद मी, मुझे अपनी शक्ति दे दे पावन आत्मा, यीशु की भक्ति दे दे पावन आत्मा, मुझे नया बना दे आत्मा, नव जीवन दे दे आत्मा, मुझे नया बना दे आत्मा, नव जीवन दे दे आत्मा, वो आत्मा परमात्मा परमात्मा वो आत्मा, परमात्मा 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 वो आत्मा, वो आत्मा परमात्मा, वो आत्मा परमात्मा, वो आत्मा परमात्मा परमात्मा, मेरे दिल में आशा आत्मा, वो आत्मा परमात्मा, वो आत्मा परमात्मा, वो आत्मा परमात्मा, वो आत्मा परमात्मा, मेरे दिल में आशा आत्मा, वो आत्मा परमात्मा, वो आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. हम आराधना में जाएंगे और आराधना के द्वारा प्रभु की स्तुति करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे खुदा, सॉन्ग नंबर 81, न्यू सॉन्ग बुक, सॉन्ग नंबर 81। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे यीशु, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं यीशु, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे यीशु, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमें आशीष दिए हैं वो गिनती से बाहर है, और परमेश्वर ने हमें इस साल के अंत में जो दिया है, और पूरे साल में इस लॉकडाउन के दरमियान परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है, उन सारे उपकारों को स्मरण करने का समय है। ये दिसंबर महीना परमेश्वर को धन्यवाद देने का महीना हम समझेंगे, कि हम याद करेंगे कि परमेश्वर ने लॉकडाउन में कैसे हमें चलाया, कैसे उसने उपकार हम पर किए हैं, योग्यता से बढ़कर भी हमें दिया। जब हम नाराज हुए, हम हताश हुए, हमारी आशा टूट रही थी, और हम ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्या करेंगे और क्या कैसा परिवार चलेगा, इतने सारे सवाल हमारे सामने थे। लेकिन हमने गाया कि हालेलुया, योग्यता से बढ़कर परमेश्वर ने हमें दे दिया। हालेलुया, कितना महान परमेश्वर है। हम उसके लिए योग्य नहीं हैं, हम में से कोई भी इसके योग्य नहीं प्यारे भाई और बहन, लेकिन परमेश्वर ने हमारी योग्यता से बढ़कर दिया। वो परमेश्वर युगानुयुग धन्य परमेश्वर है, और उसकी स्तुति और प्रशंसा और बड़ाई हमेशा युगानुयुग होती रहे। और एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम खत्म करेंगे। 65 न्यू सॉन्ग बुक 65, राजा महान यीशु राजा महान। बहुत सुंदर गाना है। मुद्दा है तू खुशी का, ओके, महफिल है दरबार में। हमारी खुशी का मुद्दा यीशु मसीह है, और हमारी खुशी, हमारा आनंद, हमारी शांति यीशु मसीह में है। हालेलुया। दुनिया की बातें हमें कुछ समय के लिए आनंद दे सकती हैं, ओके, दुनिया की चीजें हमें कुछ समय खुशी दे सकते हैं, लेकिन यीशु हमें हमेशा आनंद और खुशी देने वाला परमेश्वर है। मैं गाता हूं, आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। प्लीज ट्राई टू सिंग। सिर्फ बैठे मत रहो, लेकिन गाने की कोशिश करना मेरे साथ। राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। मुद्दा है तो खुशी का, 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 महफिल है
राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान। राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान। निर्बल को बल तू देता, 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 उठ खड़े चलाता है, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान। मेमना जो बलि बना था, 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 विजय सिंह यहूदा का, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान। मुद्दा है तो खुशी का, 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 महफिल है दरबार में, राजा है महान, यीशु राजा है महान, 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 राजा है महान, यीशु राजा है महान। Praise Jesus. Hallelujah. Thank you. पिता धन्यवाद। हालेलुया। निर्बल को तू बल देने वाला परमेश्वर है। सच में हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारे लिए मेमना बना और हमारे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया। हालेलुया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वर्शिप योर गॉड। हालेलुया। थैंक यू। Psalm 85. Psalm 85. या ओके, रेडी? मैं पढ़ता हूं। हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया। முது ஜனத்தின் அக்கிரமத்தை மன்னித்து அவர்கள் பாவத்தை எல்லாம் மூடுவீர். तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। எங்கள் ரட்சிப்பின் தேவனே, நீர் எங்களை திரும்பி கொண்டு வாரும், எங்கள் மேல் உள்ள உமது கோபத்தை ஆற பண்ணும். क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? உமது ஜனங்களை உம்மில் மகிழ்ந்திருக்கும்படி நீர் எங்களை திரும்ப உயிர்ப்பிக்க மாட்டீரோ? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। கர்த்தராகிய தேவன் விளம்புவதை கேட்பேன். அவர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கும் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கும் சமாதானம் கூறுவார். அவர்களோ மதிகெட்டு திரும்பாதிருப்பார்களாக. निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। கிருபையும் சத்தியமும் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கும், நீதியும் சமாதானமும் ஒன்றை ஒன்று முத்தம் செய்யும். पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। கர்த்தர் நன்மையானதை தருவார், நம்முடைய தேசமும் தன் பலனை கொடுக்கும்.
सब साथ में, धर्म उसके आगे நீதி आगे அவருக்கு चलेगा முன்னாக और சென்று उसके அவருடைய पद चिन्हों को அடிச்சுவடுகளின் हमारे வழியை लिए நம்மை मार्ग நிறுத்தும். बनाएगा। आमेन। 9 वचन खास करके निश्चय उसके डरवैयों का उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, गवाही का समय है। जिनके पास गवाही है अपने हाथ ऊपर करें और गवाही दे। ओके, प्रेज गॉड। No testimony, brother. Go ahead. या मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, किसी का आवाज नहीं आ रहा है। सबको आवाज आ रहा था या मेरी इसमें कुछ प्रॉब्लम है ब्रदर? बच्चों के वचन का आवाज किसी मुझे बिल्कुल आया नहीं। वीडियो देखा तो किसी को मेरा ही प्रॉब्लम है कि आप सबका भी प्रॉब्लम है? सो जिस चीज की हमें कई सालों से चिंता थी या जरूरत थी कि हमारे पास अपने खुद की ऐसी स्थायी जगह नहीं है और हम स्कूल में प्रार्थना चलाते थे और अब बहुत सारे बंधन हमारे ऊपर है और इस वजह से हम लोग स्कूल में भी प्रार्थना भी नहीं चला सकते और कोई आजादी भी नहीं, वो फ्रीडम नहीं है। तो गए दिनों में हमारे कलीसिया के भाइयों ने कहा कि हम लोग अपने एक जगह देखेंगे जो अपनी खुद की रहेगी, यानी कि रेंटल रहेगी, लेकिन जहां हम महीना भर कभी भी प्रार्थना चला सकते हैं। तो सन सिटी में प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा एक जगह मिली है जिसमें जो सबको आने जाने के लिए बहुत ही सुविधाजनक है और बिल्कुल रोड टच है। सन सिटी पुलिस चौकी के बिल्कुल पीछे के साइड में बाजू में ही हमारे लिए जगह मिली है और वहां हम लोग प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं। अभी उसका काम शुरू है और
24 शाम की जो प्रार्थना हमारी हमेशा होती है हर साल, वो उस जगह में होने वाली है। सो सारे लोग सुनना, और उस समय उस दिन अ, हम लोग 7 बजे, 7:30 बजे ब्रदर, 7:30 ना, 7:30 7:30 से लेकर आगे 9:30 तक हम लोग प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जो हमारा चाय पानी वगैरह जो कुछ होता है, स्नैक्स, वो जैसे हर साल होता है वैसा ही होगा। तो आपको एड्रेस हम लोग ग्रुप पे भेज देंगे। बिल्डिंग का नाम पाम रेसिडेंसी है, वो पूरा एड्रेस मैं आपको या फिर राज आपको ग्रुप में डालेगा, और आप उस पर एड्रेस पर आ सकते हैं। सो दिस इज आवर लास्ट जूम ऐप प्रेयर। ओके, अगले हफ्ते से हम लोग उसी जगह पे मिलने वाले हैं जो जगह हमें परमेश्वर ने दी है। उसका अभी काम चालू है और बहुत सारा खर्चा भी उसके लिए आ रहा है। तो प्रार्थना करना की जगह पे जो अभी काम चालू है, पैकिंग कर रहे हैं हम लोग, स्लाइडिंग डोर बना रहे हैं, और पुल्पिट टेबल और कुर्सियां भी खरीदने जा रहे हैं बैठने के लिए, क्योंकि नीचे सब लोग नहीं बैठ पाएंगे। इस कारण हम कुर्सियां को भी खरीदने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो प्रार्थना करना की सारी जरूरत है, फैन की जरूरत है, तो ये सारी बातों की जरूरत हमें है, और प्रार्थना करना कि परमेश्वर हमारी सारी जरूरतें पूरी करे। दूसरी बात कि जैसे हर साल आपको जो ऑफरिंग बॉक्स दिया गया है, वो ऑफरिंग बॉक्स आप 24 शाम को आप लेके आइए, जहां हमारी प्रार्थना होगी। आपके साथ आते समय ऑफरिंग बॉक्स लेके आना, और उस पर हम प्रार्थना करेंगे, और वो पैसे प्रभु की सेवा में हम इस्तेमाल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो प्लीज रिमेंबर दैट आपका ऑफरिंग बॉक्स जो आपने भरा होगा, तो आप उसको लेके आए, क्योंकि हमें अभी पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। बहुत सारा खर्चा है, डिपॉजिट वगैरह हमने दिया है 40,000, फिर रेंट वगैरह हर महीने का, और बहुत सारी बातें अभी हमारे ऊपर है। तो मैं जानता हूं कि परमेश्वर उसके स्वर्गीय भंडार से हमारी सारी जरूरतें पूरी करेगा। गॉड शैल सप्लाई ऑल आवर नीड्स। ओके, सो मेरे भाई और बहनों, ये सारी बातें हैं। प्रार्थना में रहना, और गुरुवार शाम को 7:30 बजे से पहले आप सब लोग हाजिर होंगे तो अच्छा रहेगा। अब मुझे पता नहीं कि जो गुजरात साइड में काम करते हैं, जहाँ गुजरात बॉर्डर की तरफ काम करते हैं, वो लोग कैसे उनका क्या होगा कि आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग आएंगे, और पहली ऐसी एक्चुअल सभा होगी 9 महीने के बाद। वर्चुअल अभी सभा हमारी खत्म हो रही है, ये लास्ट है सभा, और अब हमारी एक्चुअल प्रार्थना सभा, रियल फेलोशिप प्रेयर हमारी गुरुवार को होगी, और उसके बाद हमारी सारी प्रार्थनाएं वहां शुरू हो रही है। सो ग्लोरी टू गॉड, और धन्यवाद परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक जगह दे दी जहां हम आराम से बैठ सकते हैं। हफ्ते में कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं, और कोई भी भाई बहन सकते हो या पति पत्नी जाकर घुटने टेक सकते हैं, वहां घंटों घंटे प्रार्थना कर सकते हैं। सो दिस इज अवर रियली ग्रेट थिंग। इस साल के अंत में परमेश्वर ने बड़ा काम हमारे लिए किया है कि हमें अपनी एक ऐसी जगह दे दी जहां हम प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, सो थैंक गॉड। एनी और कुछ ब्रदर राज, एनी पॉइंट टू बी नहीं, आपने सब कवर कर लिया। कवर कर लिया? ओके, which is 9:30 7:30 है। खाली एक ही रिक्वेस्ट है, सबको टाइम मेंटेन करना पड़ेगा। हर या प्लीज ट्राई टू कम अर्ली। 9 हुआ तो 9:15 तक पहुंचना पड़ेगा, और जब खत्म कर रहा तो उस टाइम थोड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ, संडे का टाइम अपना जो है वही रहेगा 9:30 का। क्योंकि कमर्शियल एरिया है, थोड़ा डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अपने अपने बच्चे लोग को डिसिप्लिन से रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है स्कूल जैसा इधर उधर खेल नहीं सकते, बट अच्छी जगह मिली है, परमेश्वर ने दिया, उसको इस्तेमाल सही तरह से करना अपना जरूरी है। ताकि ओनर है, उन्होंने हम लोग अग्रीमेंट इटसेल्फ प्रार्थना के लिए करके लिख के दे रहे। ओनर जो अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने बोला जब प्रार्थना के लिए ये जगह चाहिए बोला तो तुरंत हाँ किया। वो है तो हिंदू है, फिर भी उसके लिए प्रार्थना करना, कुछ भी रुकावट नहीं दिया। इस तरह का उन्होंने दिया, तो उसको संभाल करके उनको सही तरह से करना अपना बहुत जरूरी है। ये बस यही विनती है, नथिंग एल्स। प्रेज गॉड। सॉरी, हम लोग कुछ परिवारों को मिस करेंगे। जूम ऐप में वो लोग हमें दिखाई देते थे, लेकिन अब भाई रोहित हमें दिखाई नहीं देगा, भाई
जेकब और ब्रदर आपकी माँ है ना, बराबर, जो तमिलनाडु से। फिर ब्रदर मनी को भी हम मिस करेंगे। मनी आप इधर ही हैं कि केरला में हैं? इधर ही है, इधर ही है, इधर ही। मनी इधर ही है क्या? हाँ हाँ। ओके, अच्छा मनी आप आ गए? आपका फ़ोन भी नहीं आया मुझे। ओके, वेलकम, वेलकम, प्रेज़ गॉड। और हमारी साली की बेटी है सोनल, उसको भी हम मिस करेंगे शायद। सोनल, हाँ, आपको भी हम बुलाएँगे, आप भी आ जाना हमारे साथ। ओके, सो पीपल फ्रॉम भाईंदर, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग वो तो आएँगे ही। प्रेज़ गॉड, दोनों परिवार भाईंदर से आएँगे और we will be like one family there. Okay, so continue to pray और हमारे साथ हम उस दिन 24 शाम को हम सब लोग जल्दी पहुंचेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। ओके, प्रेज गॉड। सो ओके, आज हम प्रकटीकरण से बात करने वाले हैं। आई विल शेयर with you from the book of Revelation. Book of Revelation chapter 4. गए साल या इसी साल मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने 7 कलीसिया के ऊपर बात की थी। 7 churches के ऊपर मैंने बात की थी कि 7 कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह का संदेश, और उसके बाद अब हम 4थे अध्याय में क्या होता है हम एक झलक को देखेंगे। शुरू करने से पहले कबूल करना चाहता हूं कि I may not be perfect in every revelation. Hello? I may not be perfect in every revelation. I may go wrong sometimes. But जहां तक हो सके, जितना हम समझते उतने ही बातें हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है यहाँ बैठे हुए कई लोग हैं जिसको मुझसे भी ज्यादा आता होगा रेवलेशन के बारे में। ओके, सो अगर मेरी कुछ मेरा कोई पॉइंट गलत जाता है तो मुझे आप बता सकते हैं बाद में। ठीक है, ठीक है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन और रिवील द वर्ड ऑफ गॉड एज आई नो। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट लेट अस प्रे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। इस समय तेरे पवित्र वचनों से प्रभु हम देख रहे हैं और रेवलेशन प्रभु चैप्टर 4 से प्रभु मैं तेरे लोगों को के साथ बातें करने जा रहा हूँ, और ये वचन बोलने के लिए, तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए और समझाने के लिए जो आत्मिक बुद्धि और ज्ञान की जरूरत है, पवित्र आत्मा की प्रकटीकरण की जरूरत है। पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कर कि मैं इन वचनों को तेरे लोगों के सामने तेरे आत्मा के अभिषेक के नीचे प्रकटीकरण के द्वारा रख सके। परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करता हूँ, और मेरे जुबान से निकलने वाला हर एक शब्द प्रभु तो आशीषित करना, और तेरे लोग ये वचन सुनकर और भी आशीषित हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमेन, आमेन। ओके, और एक चीज मैं भूलने से पहले, अगर हो सके तो शालिनी के घर में विजिट करना आज या कल। और मैं चाहता हूं ब्रदर राज एक चीज की, कल शाम को हम घंटे या पौना घंटे के लिए शालिनी के घर में हम प्रार्थना के लिए जाएंगे, जो जो लोग उपस्थित होंगे। इज दैट ओके? आप अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। उनका प्रार्थना आज कुछ 5:30 है बोल रहा था ना उस दिन। हाँ, वो परिवार वाले करने वाले हैं, परिवार वाले। हाँ। लेकिन हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग भी एक कल शाम को रखे प्रार्थना जरूरी 7 बजे। हाँ, जरूरी है ना? उनसे बात कर लीजिए और एक हाफ एन आवर, एटलीस्ट हाफ एन आवर एक प्रार्थना रखना। या हाफ एन आवर हम प्रार्थना के लिए जाएंगे, वहां जो भी उपस्थित है 2-3 परिवार तो जाएंगे, और हम लोग भी आएंगे और एक सांत्वना की प्रार्थना करके आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कल शाम को 7 बजे ये समय हम रखेंगे, 7, 7:30 बजे। ओके, सो ओके, लेट अस गो अहेड। चैप्टर 4, नए दिनों में हम लोग ने बातें की, अपने वचन सुना, स्टबर्ननेस और हार्डनिंग ऑफ हार्ट के बारे में सुना।
और वो विषय अब मैंने खत्म कर दिया है। अब हम देखते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना, और इस आराधना में हम क्या-क्या देखने वाले, अध्याय में क्या-क्या हमें देखने को मिलता है, किस तरह परमेश्वर की आराधना स्वर्ग में होती है और परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की सुंदरता वहां किस तरह से दिखाई देती है, और वो जो अद्भुत नजारा यूहन्ना को दिखाया गया वो नजारा क्या है, और किस तरह यूहन्ना ने आत्मा में जो सब देखा, किस तरह से देखा, हम सब पढ़ने वाले हैं। ब्रदर पहले तमिल में पढ़ना 1 to 6, ब्रदर रीड इन तमिल फर्स्ट एंड देन वी विल गो अहेड। 1 to 6। இவைகளுக்கு பின்பு இதோ பரலோகத்தில் திறக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வாசலை கண்டேன். முன்னே எக்கால சத்தம் போல என்னுடனே பேச நான் கேட்டிருந்த சத்தமானது, இங்கே ஏறி வா, இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை உனக்கு காண்பிப்பேன் என்று விளம்பினது. உடனே ஆவிக்குள்ளானேன். அப்பொழுது இதோ வானத்தில் ஒரு சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த சிங்காசனத்தின் மேல் ஒருவர் வீற்றிருந்தார். வீற்றிருந்தவர் பார்வைக்கு வச்சிர கல்லுக்கும் பதும ராகத்துக்கும் ஒப்பாய் இருந்தார். அந்த சிங்காசனத்தை சுற்றி ஒரு வானவில் இருந்தது. அது பார்வைக்கு மரகதம் போல தோன்றிற்று. அந்த சிங்காசனத்தை சூழ 24 சிங்காசனங்கள் இருந்தது. 24 மூப்பர்கள் வெண் வஸ்திரம் தரித்து தங்கள் சிரசுகளின் பொன்முடி சூடி அந்த சிங்காசனங்கள் மேல் உட்கார்ந்திருக்க கண்டேன். அந்த சிங்காசனத்திலிருந்து மின்னல்களும் இடி முழக்கங்களும் சத்தங்களும் புறப்பட்டன. தேவனுடைய 7 ஆவிகளாகிய 7 அக்கினி தீபங்கள் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக எரிந்து கொண்டிருந்தன. அந்த சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக பளிங்குக்கு ஒப்பான கண்ணாடி கடல் இருந்தது. அந்த சிங்காசனத்தின் மத்தியிலும் அந்த சிங்காசனத்தை சுற்றிலும் 4 ஜீவன்கள் இருந்தன. அவைகள் முன்புறத்திலும் பின்புறத்திலும் கண்களால் நிறைந்திருந்தன. ஆமென்। तो इस पहले वचन में हम देखते हैं कि इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरई के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना, वो वही कहता है, यहां ऊपर आ और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना अवश्य है। सो प्यारे भाई और बहनों, हम इस पहले वचन में देखते हैं कि इस अध्याय में संसार के अंत में होने वाली बातों के घटनाओं का विवरण यहां दिया गया है, और यूहन्ना को आत्मा में ऊपर परमेश्वर लेके गया। बाइबल सेज कम अप हियर, यानी कि यहां हम देखते हैं कि स्वर्ग में द्वार खुला। इन बातों के बाद मीन्स इन बातों के बाद व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस इवेंट्स, आफ्टर दिस थिंग्स। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, ये जरूरी है कि ऐसा क्यों लिखा है इन बातों के बाद, यानी कि 1 से 3 अध्याय में हम देखते हैं कि यहां कलीसियाओं का विवरण दिया गया, 7 चर्चेस इन टर्की, तो तुर्कस्तान में स्थित ऐसे 7 कलीसियाओं का विवरण दिया गया है। उसके बाद यानी कि कहीं ना कहीं प्यारे भाई और बहनों ऐसा प्रतीत होता है कि यहां इस अध्याय में जो लिखा है इन बातों के बाद, यानी कि यहां कहीं ना कहीं ऐसा परमेश्वर दिखा रहा है कि यहां कलीसिया का समय खत्म हो जाता है। कलीसिया का जो काल है, ग्रेस पीरियड है, कृपा का समय है, वो खत्म हो जाता है, और स्वर्ग में एक द्वार खुला, और परमेश्वर यूहन्ना को कहता है, जो कलीसिया का एक प्रतिनिधित्व करता है, और परमेश्वर यीशु मसीह खुद सारी बातें यूहन्ना को दिखाता है। इसलिए तो यहां लिखा है कि इन बातों के बाद, यानी कि यहाँ कलीसिया के काल खत्म होने के बाद परमेश्वर ने उसे दिखाया कि एक स्वर्ग में द्वार खुला हुआ है जो कलीसिया को ऊपर प्रवेश करने के लिए हो सकता है। तो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ एक आशा है कि बहुत सारे प्रॉफिट्स जो है, बहुत सारे सेवक जो ये कहते हैं कि इस अध्याय में
कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कलीसिया का उठाया जाना, जिसको हम रैप्चर कहते हैं, वो होने वाला है। और फिर आगे उसे वो कहता है कि मैं तुझे दिखाऊंगा कि इनके बाद क्या क्या होने वाला है। ओके, जिनका होना, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना। कौन से बातों के बाद? मेरे ख्याल से, मेरे रेवलेशन के अनुसार मैं कहता हूं कि परमेश्वर कलीसिया के बारे में बात करता है। कलीसिया का काल, द डिस्पेंसेशन, एक समय है, द टाइम ऑफ चर्च ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर से कलीसिया को जन्म दिया, उसे 2000 साल हो गए हैं। और 2000 साल का समय खत्म होने के बाद, यानी कि कलीसिया का कृपा का समय, वी आर लिविंग इन द ग्रेस पीरियड। ओके, आर यू एग्री विथ मी? वी आर लिविंग इन ग्रेस पीरियड। सो ये ग्रेस पीरियड खत्म हो जाएगा और फिर शैतान का समय, यानी कि एंटी क्राइस्ट का समय शुरू होने वाला है। और ये एंटी क्राइस्ट के दिनों में, मसीह विरोधी के दिनों में क्या क्या होने वाला है, परमेश्वर यूहन्ना को आत्मा में ऊपर लेके जाके दिखा रहा है। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, ये बातें इस पहले वचन में हमको देखने की मिलती कि अंत तक, जो अंत में जो बातें होने वाली है, उन बातों का, घटनाओं का विवरण इन वचनों में किया गया है। इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। यानी कि 7 ईयर ट्रिबुलेशन पीरियड में जो बातें होने वाली हैं, और 7 ईयर के बाद भी जो 1000 साल का प्रभु यीशु मसीह का एक्चुअल राज्य है, जिसमें हम उसके साथ होंगे, उसके साथ राजे और पुरोहित करके, किंग्स एंड प्रीस्ट। सो इन बातों के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह पूरी घटनाओं का विवरण पूरे इस प्रकाशित वाक्य में दिया गया है, पूरी तरह से यूहन्ना को। इससे पहले ना, यूहन्ना जब लिख रहा था तो एक साधारण आत्मिक तौर पर पवित्र आत्माओं से लीड कर रहा था। He was inspired by Holy Spirit when he wrote about the churches, 7 churches. So he was he was led by Holy Spirit, he was inspired by Holy Spirit, और उसने कलीसियाओं के बारे में लिखा। लेकिन यहां हम एक चीज को देखते हैं कि यूहन्ना इज इन द कंप्लीट, इज कवर्ड बाय कंप्लीटली होली स्पिरिट। वो आत्मा में, ही इज इन द गॉड स्पिरिट। उसका पवित्र आत्मा जो है उसको उठाकर लेके गया। ओके, उसे पवित्र आत्मा में उठाकर लेके गया और उसे परमेश्वर ऊपर से दिखा रहा है कि नीचे क्या होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। सो हम इस चीज को देखते हैं। दूसरे वचन में हम तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। सिंहासन का मतलब क्या है? सबसे पहले उसने सिंहासन देखा, परमेश्वर का सिंहासन देखा। सिंहासन क्या है? सिंहासन एक सामर्थ्य का और राज्य का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। एक राजा सिंहासन पर बैठता है जब न्याय करता है, जब ऑर्डर देता है, जब कोई फरमान निकालता है, तो एक राजा खड़ा रहकर अपने सिंहासन पर बैठकर वो फरमान देता है और वो सजा सुनाता है, या फिर वो न्याय करता है, या वो किसी को न्याय दिलाता है। हालेलुया। सो सबसे पहले उसको एक सिंहासन दिखाई दिया जो स्वर्ग में रखा है, और उस पर, सिंहासन पर कोई बैठा है। ही इज नॉट क्लियर, परमेश्वर उसको दिखाई नहीं दे रहा है। यहोवा परमेश्वर इतना तेजोमय है कि उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बाद वो उसका वर्णन भी करता है। कोई, ऐसा लिखा है, someone is sitting on the throne, someone, यानी कि परमेश्वर को ऐसे कोई आसानी से नहीं देख सकता है। परमेश्वर अद्भुत उजाले में और अग्नि में, आग में रहने वाला परमेश्वर है। सो उसको पहले, सबसे पहले सिंहासन दिखाया, जो सिंहासन हम देखते हैं कि सिंहासन देखते हैं कि न्याय का प्रतीक है। परमेश्वर न्यायाधीश परमेश्वर, और सिंहासन पर बैठकर वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। ओके, तीसरे वचन में उस पर जो बैठा है वो यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा एक मेघधनुष्य दिखाई देता है। यहां हम देखते हैं कि ये जो अद्भुत जो स्टोन्स के बारे में लिखा हुआ है, पत्थरों के बारे में लिखा हुआ है, वो परमेश्वर की एक अद्भुत महिमा और ज्योति का उल्लेख करता है। बहुमूल्य पत्थर, प्रेशियस स्टोन्स, चमकने वाले,
जिसमें से उजियाला निकलता है, रोशनी निकलती है। ऐसे पत्थर, ऐसे ज्योति बहुमूल्य पत्थरों के बीच में सिंहासन पर बैठे हुए उसको एक मेघधनुष्य दिखाई दे रहा है, मरकत सा मेघधनुष्य। आपको पता है कि परमेश्वर ने नोह के जमाने में बाढ़ के बाद एक आकाश में मेघधनुष्य दिखाया दिखाया था। उसका अर्थ है कि परमेश्वर का जो करार है वो मनुष्य की जाति के साथ है। हम उसका विवरण देखते हैं यहेजकेल की पुस्तक में, बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 1, एजेकियल 1 चैप्टर 1 26 टू 28, 26 से लेकर 28 तक। 25 से 28, 26 से लेकर 28 तक परमेश्वर के महिमा का वर्णन, किस तरह परमेश्वर का सिंहासन और कैसे परमेश्वर महिमा से घिरा हुआ है, ज्योतियों से और उन बहुमूल्य पत्थरों से घिरा हुआ है। और यहेजकेल ने इस दर्शन को देखा था। रीड फ्रॉम 26 to 28. அவைகளின் தலைக்கு மேலுள்ள மண்டலத்தின் மீதில் நீல ரத்தினம் போல விளங்கும் ஒரு சிங்காசனத்தின் சாயலும், அந்த சிங்காசனத்தின் சாயலின் மேல் மனுஷ சாயலுக்கு ஒத்த ஒரு சாயலும் இருந்தது. அவருடைய இடுப்பாக காணப்பட்டது முதல் மேலெல்லாம் உட்புறம் சுற்றிலும் அக்கினிமயமான சொகுசாவின் நிறமாய் இருக்க கண்டேன். அவருடைய இடுப்பாக காணப்பட்டது முதல் கீழெல்லாம் அக்கினிமயமாகவும் அதை சுற்றிலும் பிரகாசமாகவும் இருக்க கண்டேன். மழை பெய்யும் நாளில் மேகத்தில் வானவில் எப்படி காணப்படுகிறதோ அப்படியே சுற்றிலும் உள்ள அந்த பிரகாசம் காணப்பட்டது. இதுவே கர்த்தருடைய மகிமையின் சாயலுக்குரிய தரிசனமாய் இருந்தது. அதை நான் கண்டபோது முகங்குப்புற விழுந்தேன். அப்பொழுது பேசுகிற ஒருவருடைய சத்தத்தை கேட்டேன். ஆமென். Amen. यहाँ परमेश्वर के महिमा का वर्णन दिया गया है, हाउ गॉड लुक्स लाइक, ओके। और परमेश्वर की महिमा और ऐश्वर्य और उसके अद्भुत ज्योति किस तरीके से है। जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल का सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर चारों ओर आग से दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग से दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा का तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जिसे कोई बातें करता है। तो प्यारे भाई बहनों, इब्रानी की किताब में बाइबल में गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर, और हमारा परमेश्वर आग के बीच में होकर चलने वाला परमेश्वर है। या फिर हमारे परमेश्वर के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि वो अगम्य ज्योति में वास करने वाला परमेश्वर है, अगम्य ज्योति में वास करने वाला। पहला तिमोथी 6, 1 तिमोथी 6 और 16 वर्स। ஒருவராய் சாவாமை உள்ளவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிறவரும் மனுஷரில் ஒருவரும் கண்டிராதவரும் காணக்கூடாதவருமாய் இருக்கிறவர், அவருக்கே கனமும் நித்திய வல்லமையும் உண்டாயிருப்பதாக। आमीन। आमीन। यहाँ पौलुस भी तिमोथेयुस के पत्र में परमेश्वर के अद्भुत महिमा का वर्णन कर रहा है। अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है। अगम्य ज्योति में रहता, न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वर्णन यहेजकेल ने किया है, यही वर्णन यूहन्ना ने किया है, और इसमें से हम देखते हैं कि पौलुस जो तीसरे आकाश तक उठाया गया था, पौलुस भी उसका वर्णन इसी तरह से कर रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस तरीके से अगम्य ज्योति में, और वो अद्भुत पत्थर जो है, वो बहुमूल्य पत्थर जिसमें से रोशनी निकलती है, उस तरीके से उसको परमेश्वर यहोवा का दर्शन, हमारे यीशु का दर्शन
हुआ। प्रेज द लॉर्ड। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर किस तरह की स्थिति में रहता है, उसकी अद्भुत ज्योति, उसके महिमा का वर्णन हम यहाँ से पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, ना हम अपने शब्दों से कर सकते हैं। जितना लिखा है उससे ज्यादा बढ़कर हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम जाएंगे तो हम अपने परमेश्वर का दर्शन आंखों से देखेंगे। हालेलुया। लेकिन तब तक परमेश्वर ने हमें इतना तो दिखाया है कि परमेश्वर की महिमा और उसका वर्णन, उसका स्वरूप कैसा हो सकता है। ओके, चौथे वचन में, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट। ये 24 प्राचीन एक स्पेशल स्वर्गदूत हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि 12 इज़राइल के गोत्र के लोग, 12 वंश के 12 लोग प्राचीन, और फिर 12 शिष्य, यीशु के 12 शिष्य, इन 12 मिलकर 24 ऐसे ये प्राचीन यहाँ दिखाई देते हैं, जो शुभ्र वस्त्र पहने हुए, सोने के मुकुट पहने हुए यहाँ दिखाई देते हैं। सो ये चौथे अध्याय में ही दिखाई देते हैं। इससे पहले कलीसिया का जो वर्णन किया गया है उसमें कहीं इन 24 इसका जिक्र नहीं दिखाई देता है। तो इसका मतलब कि हो सकता है अब रैप्चर हुआ है, परमेश्वर ने अपने कलीसिया को उठाया है और ये लोग वहां उपस्थित है। एक झलक है जो परमेश्वर यीशु यूहन्ना को दिखा रहा है कि स्वर्ग में किस तरह से आराधना होती है, वहां के सिंहासन कैसे रखे हुए हैं और वहां क्या क्या हो रहा है। और बाइबल कहती है कि वहां उनके सिरों पर सोने के मुकुट है, श्वेत वस्त्र पहने हुए। और बाइबल आपको हमको सिखाते श्वेत वस्त्र क्या होता है, सफेद वस्त्र क्या दिखाते हैं, विश्वासियों के धर्म के काम, द गुड वर्क्स आर वर्क्स ऑफ सेंट्स। संत लोग परमेश्वर यीशु मसीह के लोगों के जो कर्म है, काम है, वो ये वस्त्र दिखाते हैं। तो ये प्राचीन जो है, ये 24 प्राचीन एक स्पेशल स्वर्गदूत हो सकते हैं, या फिर ये 24 माने कि 12 इज़राइल के गोत्र के जो लीडर्स हैं वो, या फिर 12 और 12 यीशु के शिष्य, ये मिलकर 24 ये हो सकते हैं। लेकिन जो भी है हम जाएंगे तो देखेंगे। लेकिन यहाँ दिखाई देता है कि उसके चारों ओर ये 24 वडील जो हैं प्राचीन बैठे हैं, जो उसकी आराधना करते हैं। उनके सिरों पर सोने के मुकुट है जो उनका प्रतिफल है। हालेलुया। और ये सोने के मुकुट हमारे पृथ्वी पर जो काम हम करेंगे उसके अनुसार, जो आपको मुकुटों के बारे में, 5 मुकुट के बारे में मैंने सिखाया था, वो मुकुट के हमें दर्शाते हैं। इस प्रकार का काम, उस प्रकार के मुकुट रहेंगे। 5वें वचन में, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के आग के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, जो परमेश्वर की 7 कलीसिया, 7 आत्माएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि ये 7 दीपक क्या है, 7 आत्माएं कही गई है, या आत्माओं के 7 गुण, the seven characteristics of Holy Spirit। ये पवित्र आत्मा के 7 भाग हम कह सकते हैं। और ये पृथ्वी पर बाइबल कहती है कि है, और ये जो सिंहासन में से आग और बिजलियां, ये सारी परमेश्वर की महिमा और या उसके बोलने का आवाज जो है वो दर्शाते हैं। हम देखते हैं निर्गमन की किताब 19, बुक ऑफ Exodus, chapter 19, book of Exodus chapter 19 from verse 16 to 19। मिला? कौन सा वर्ष? निर्गमन, बुक ऑफ Exodus chapter 19, दूसरा पुस्तक, उत्पत्ति के बाद दूसरा पुस्तक, वर्ष 19 to 16 to 19, 16 to 19, 16 से लेकर 19 तक। 3ஆம் நாள் விடியற் காலத்தில் இடி முழக்கங்களும் மின்னல்களும் மலையின் மேல் கார் மேகமும் மகாபலத்த எக்கால சத்தம் உண்டாயிற்று. பாளையத்தில் இருந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் நடுங்கினார்கள். அப்பொழுது ஜனங்கள் தேவனுக்கு எதிர்கொண்டு போக மோசே அவர்களை பாளையத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினான். அவர்கள் மலையின் அடிவாரத்தில் நின்றார்கள்.
கர்த்தர் சீனாய் மலையின் மேல் அக்கினியில் இறங்கினபடியால் அது முழுவதும் புகைக்காடாய் இருந்தது. அந்த புகை சூளையின் புகையைப் போல எழும்பிச்சு, மலை முழுவதும் மிகவும் அதிர்ந்தது. எக்கால சத்தம் வர வர மிகவும் பலமாய் தொனித்தது. மோசே பேசினான், தேவன் அவனுக்கு வாக்கினால் மறுமொழி கொடுத்தார். ஆமென். Amen. जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने, बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से बाहर निकाल ले आया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सिनाई पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा जल रहा था, उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और भारी होता गया, तब मूसा बोला, परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। सो यहाँ जो हम वर्णन देख रहे हैं, जो यूहन्ना कर रहा है, वैसा ही कुछ वर्णन जब परमेश्वर यहोवा खुद आग में होकर सिनाई पर्वत पर उतरा था इजरायली लोगों से बातें करने के लिए। हालेलुया। जहां उसके अगले अध्याय में परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से पत्थर पर 10 आज्ञाएं लिखी थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो यहाँ ये अद्भुत वर्णन की परमेश्वर जब उतरता है तो आग के साथ उतरता है और उसके सामने पर्वत थरथर कांपते हैं और पत्थरों में से धुआं निकलता है, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। God is a consuming fire. Praise the Lord. So मेरे भाई बहनों, ये सब अद्भुत वर्णन सुन के या पढ़ के हमें क्या दिखाई देता है कि हमारा परमेश्वर कोई मामूली परमेश्वर नहीं है, गहरा गहरा गली का भगवान नहीं है। हालेलुया। किसी पत्थर में रहने वाला, किसी गली में रहने वाला, किसी एक कोने में रहने वाला गॉड नहीं है। वो अद्भुत महामहिमा में सामर्थी, और उसका वर्णन मैं अपने शब्दों से नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारा परमेश्वर इस तरीके का परमेश्वर होते हुए भी वो हमारे अंदर वास करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे साथ वो व्यवहार करता है, हमसे बातें करता है और अपनी बातें वो हमें सुनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये जो 5वें वचन में सिंहासन में से बिजलियां गरजने निकलने और आग जो है वो क्या दर्शाते, हमारा परमेश्वर इस तरीके से आग में वास करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने उनको, यहोवा ने कहा, कोई भी मनुष्य पर्वत के चोटी पर चढ़ के न आए। अगर कोई भूल से भी प्राणी या मनुष्य उस बाड़े को तोड़ के, जो बाड़ा उनको लगाया था, उस बाड़े को तोड़कर अगर कोई ऊपर आता है तो वो भस्म हो जाएगा, वहीं मर जाएगा जल कर। हालेलुया। परमेश्वर का तेज इतना भयानक था कि पर्वत थरथर कांप रहा था, और ये वाणी ऐसी वाणी थी जैसे मेघ गर्जना होती थी, थंडरिंग और लाइटनिंग। जब गॉड बातें करता है तो इस तरीके से उसकी आवाज सुनाई देती है। और परमेश्वर मूसा ने परमेश्वर लोगों को बताया कि ये यहोवा की वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर, प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के बोलने की जो तरीका है, ओके, वो अद्भुत है, वो हम अपने उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर यहोवा ने यीशु के रूप में आकर हमसे बातें की। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर की बातें लोग सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब यहोवा बोलता है तो सब जैसे कि ऐसा आवाज है जैसे मेघ गर्जना से, जैसे कोई उसे सुन नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है। दैट्स द रीजन परमेश्वर यहोवा ने यीशु का रूप धारण किया और उसे पृथ्वी पर हमारे लिए भेजा कि वो परमेश्वर की बातें, स्वर्ग की बातें हमें सिखाएं और हम उसे सुने और आशीष पाए और उद्धार पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस तरीके से ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो हमें पवित्र आत्मा देता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये बातें वो समझाता है। और सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र था। हालेलुया। ये कांच का समुद्र, यानी कि जो दर्शन यहेजकेल ने देखा था, उसी के समान यहाँ वर्णन किया गया है। मैं नहीं जानता है कि ये कांच का समुद्र क्या हो सकता है, पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसी अद्भुत बात है कि जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। ओके,
जैसे कि आजकल हम लोग स्क्रीन पे सब कुछ देख सकते हैं, हमारे सामने स्क्रीन होती है, स्क्रीन पर या फिर मोबाइल पर हम इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया को देख सकते हैं। हालेलुया। वैसा ही कुछ वहां व्यवस्था होगी, पता नहीं, लेकिन ये अद्भुत बात है कि वहां कांच का समुद्र है, बिल्लोर के कांच के समान। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट कुड बी, लेकिन कुछ तो है जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। सुनाए, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें आंखें। अद्भुत मिस्टीरियस कुछ 4 प्राणी हैं जो सिंह, बैल और फिर मनुष्य और उकाब यानी कि ईगल के ईगल के समान है। ओके, सो यहाँ लिखा हुआ है कि पहला प्राणी सिंह के समान, जो सामर्थ्य का प्रतीक है। ओके, सिंह सामर्थ्य का प्रतीक है। बैल दूसरा समान है जो बछड़ा, बछड़ा एक बछड़ा जो अर्पण किया जाता है, मेमना या बछड़ा जो एक काम का बोझ ढोने का प्रतीक है। बोझ यानी कि खेती के कामों में काम में आने वाला वो है, उसका भी एक बल होता है, वो बल का प्रतीक है। और चौथा जो है, तीसरा मनुष्य का सा मुंह है, मनुष्य का सा दिखाई देता है। तीसरे प्राणी का मुंह जो मनुष्य का सा, यानी कि मनुष्य का जो क्या है, बुद्धि का प्रतीक है। क्या कहते हैं हम लोग, मनुष्य इस धरती पर सबसे बुद्धिमान अगर कोई है तो मनुष्य प्राणी है। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हमें दिखाई देते हैं, यीशु मसीह के कैरेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं। चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। उकाब कहाँ रहता है? ईगल ऊंचे ऊंचे पर रहता है, अकेला। हालेलुया। और उसकी आंखें इतनी तेज होती है कि ऊपर से धरती पर थोड़ी सी भी हलचल होती है, कोई भी शिकार उसके नजर में होती है, वो वहां से तेजी से गति, उसकी स्पीड इतना है कि ऊपर से नीचे तक इतनी स्पीड में आता है वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए। सो ईगल जो एक ऐसा प्रतीक है जो ऊपर आसमान में उड़ता रहता है, और हमारा यीशु मसीह इस तरीके सा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये सारी बातें जो है, 4 प्राणी यीशु के इस 4 बातों का वर्णन करते हैं, भिन्न भिन्न कामों का वर्णन करते हैं। हालेलुया। जीसस वाज द परफेक्ट मैन एंड परफेक्ट गॉड। हालेलुया। जब यीशु मसीह धरती पर था, सो इन द फ्लेश आल्सो, वो जो इस शरीर में था, तब भी वो एक परिपूर्ण मनुष्य था और परिपूर्ण परमेश्वर उसके अंदर था। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये बातें हम देखते हैं कि इस तरीके से उसका वर्णन यूहन्ना हमें हमारे लिए कर रहा है। और वो जो उसके 6 पंख थे, 6 विंग्स थे, और चारों ओर भीतर और बाहर और बाहर जो है उसकी आंखें थी, वो शायद ये दिखाती हैं, उसकी आंखें जो ये दिखाती हैं कि वो सब कुछ देख रहा है। ओके, सब वस्तुओं का सृष्टि करता है और सब कुछ देख सकता है, और उसकी आंखों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हालेलुया। तो ये आंखें, बहुत सारी आंखें ये दिखाती हैं कि प्रभु की नजर सब जगह है, वो कुछ भी देख सकता है, उसकी नजर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ये अद्भुत 4 प्राणी क्या हैं? ये 4 स्वर्गदूत हो सकते हैं, अद्भुत रीति से प्राणी, जो हम जाएंगे तब देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन इस तरीके से वर्णन किया गया है, और ये हमें पता चलता है कि किस तरह स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना वहां होती है। और उनका काम क्या है कि रात और दिन ये लोग इस तरीके से परमेश्वर की बिना विश्राम किए हुए आराधना करते हैं। हालेलुया। आराधना करते हैं बिना 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 विश्राम किए हुए, यह कहते रहते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर उसके लोगों की स्तुति में वास करने वाला परमेश्वर है। ओके, परमेश्वर सर्वसामर्थ्य परमेश्वर है, सारी सृष्टि के चीजों का रचने वाला है, और परमेश्वर सारी महिमा और आदर को, और वे क्या कहते हैं रात दिन, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। इस तरीके से ये रात और दिन ये बातें कहते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उनका काम ये है। तो हमें भी प्यारे भाई और बहनों, रोज सुबह शाम परमेश्वर की आराधना करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रभु ने हमें चुनकर रखा हुआ है। हालेलुया।
हालेलुया। स्वर्ग में तो उनके लिए आसान है स्तुति आराधना करना, लेकिन धरती पर हम लोगों के लिए बहुत कठिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमारे लिए उनसे भी बेहतर अद्भुत बातें बनाकर रखी हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार करता है, और पृथ्वी पर प्रभु ने हमें इसीलिए चुनकर रखा है कि हम भी उसकी स्तुति आराधना निरंतर करते रहें। हालेलुया। अनसीजिंगली हम उसकी स्तुति आराधना करते रहे। जब वे प्राणी उसको जो सिंहासन पर बैठा है, जो युगानुयुग जीवता और महिमा और आदर को धन्यवाद करेंगे। अब 24 प्राचीन जो हैं उस सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ते हैं। ये 24 प्राणी जो प्राचीन है, वडील है, जो शायद मनुष्य में से लिए गए हैं, और वहां वो हैं, वो क्या करते हैं? परमेश्वर यहोवा के सामने जो सिंहासन पर बैठा है उसके सामने गिर पड़ते हैं, झुकते हैं, और यहां तक कि अपने सोने के मुकुट वो निकाल कर नीचे रखते हैं। ओके, और प्रणाम करते हैं और ये कहते हैं कि हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं रची और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई है। ये गाना है। एक गाना हिंदी में है जो मैं हमेशा गाता हूं, तू योग्य है, तू योग्य है, पुस्तक को लेने, मुहर खोलने, तू योग्य है। ओके, और इस तरीके से अद्भुत गाना है कि परमेश्वर महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य परमेश्वर है, और तूने सब वस्तुएं के बनाई, और तू ही उसको तेरी इच्छा से उसको अपने बनाई, और वे तेरी इच्छा से सृजी गई है। सो प्यारे भाइयों, यहाँ देखते हैं कि 24 प्राचीन जो है सोने के मुकुट निकाल कर यहोवा के सामने रख देते हैं। जब जब ये लोग स्तुति करते हैं, वो हमेशा परमेश्वर के सामने झुकते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, स्वर्ग में ये लोग परमेश्वर के सामने अपने सोने के मुकुट, जो प्रतिष्ठा का एक चिन्ह है, उसके कामों का प्रतिफल है, लेकिन परमेश्वर के सामने देते हैं। इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमें भी इसमें से दिखाई देता है कि हम भी पृथ्वी पर होते हुए अपने अपने मुकुट, अपने अपनी प्रतिष्ठा, अपना अपना घमंड, अपनी जो बड़ी बातें, ये सब कुछ हम बाजू में रखे और परमेश्वर के सामने झुके, और परमेश्वर के सामने उसकी आराधना हम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब ये इतने बड़े प्राचीन होकर जिसको ये प्रतिफल दिया गया है, ये इनाम या तोहफा दिया गया है, मुकुट दिया गया है, वो बाजू में रखते हैं, तो हमें अपना हक, हमें अपनी जिद, हमें अपना घमंड, हमें अपने दिल की कठोरता या फिर कठिनता, ओके, या हट करना, ये सारी बातें हमें निकाल कर रख देनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सोने के मुकुट चाहिए, स्वर्ग में प्रतिफल चाहिए। तो नया साल, ये साल खत्म हो रहा है, और जितने महीने दिन खत्म होते जाते रहे हैं, प्यारे भाई और बहनों, यीशु के आने का, आगमन का समय नजदीक आ रहा है। ध्यान में रखना, मैं एक-एक ऐसे बातें पढ़ता हूँ और सुनता हूँ, बड़े-बड़े लोगों से मैं सब देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ कि प्यारे भाई और बहनों, सबों का एक ही कहना है कि जिस तरीके से तैयारी पृथ्वी पर हम देख रहे हैं इन दिनों में, वो सारी तैयारी यीशु के आने का चिन्ह है, या यीशु के आने की तैयारी है। प्रभु अब पुनः आकर अपने लोगों को ले जाएगा, इसकी तैयारी है। इसलिए जो भी हमारे कलीसिया में लोग हैं, उन सबों से मैं निवेदन करता हूँ, भाई बहन, पति पत्नी, या जो भी है कलीसिया में, सालों से किसी के साथ बातें नहीं करते हैं, सालों से, सालों से। ध्यान में सुना, अभी भी कि अगर ऐसे होंगे, किसी से बातें नहीं करते हैं, किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, हट और जिद, अक्षमा, कड़वाहट दिल में भरी हुई है, क्षमा कर देना, अपना हट, अपने सारी बुरी बातें, अपना मुकुट परमेश्वर के सामने रख देना, प्रभु से कहना, प्रभु मैं भले पढ़ा लिखा हुआ हूँ, मैं दूसरों से बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तेरे सामने झुकता हूँ और तेरी आराधना करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। घमंड में, अहंकार में हम कुछ नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी महिमा के लिए हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, हम जो कुछ करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे। हालेलुया। अहंकार में, घमंड में नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपना मुकुट हम रख के बाजू में छोड़ देंगे, प्रभु से कहेंगे, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा सेवक हूँ, मेरी सहायता कर।
हालेलुया। इस तरीके से स्वर्ग में ये दूत लोग किस तरह आराधना करते हैं, ये 24 प्राचीन किस तरह आराधना करते हैं, और हमारे परमेश्वर का स्वरूप कितना अद्भुत है प्यारे भाई और बहनों। और ऐसा अद्भुत महामहिम परमेश्वर, आग में चलने वाला, अगम्य ज्योति में रहने वाला, उसकी महिमा और प्रशंसा, स्तुति, धन्यवाद युगानुयुग होनी चाहिए और होती रहेगी। और प्यारे भाई और बहनों, इसी के लिए परमेश्वर ने तुम्हें और हमें चुना है, और हम उसी काम में लगे रहेंगे। हमारे पास समय बहुत कम है, और प्यारे भाई और बहनों, जितना हो सके उतने प्रभु के पास चले जाओ, प्रभु के सानिध्य में चले जाओ। जो भी प्रार्थना आपसे हो सकती है, आधा घंटा 1 घंटा करो, अपने बचाव के लिए, अपने खुद के बचाव के लिए और अपने परिवार के बचाव के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रार्थना करो। दिन बहुत बुरे हैं, शैतान पीछे पड़ा हुआ है, और खास करके विश्वासों के पीछे पड़ा हुआ है, और वो नहीं चाहता है कि कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। उसको भी पता है कि उसका समय आ गया है, और इन लोगों का जाने का समय आ गया है, तुम्हारा मेरा। वो जानता है कि उसका समय कम है, इसके लिए किसको फाड़े, किसको निगले, किसको विश्वास में से पीछे हटाए, और किसको दिल में कठोर करके बनाए रखे, ये सब शैतान जानता है। आप क्या सोचते हैं? आप अपने अपने जगह पर सही हैं? आपको और हमको लगता है मैं मेरे जगह पर सही हूं, मुझे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप ऐसा सोचते हैं, तो आपको पहले जरूरत है कि आपको कोई सिखाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो अपना जिद, अपना अहंकार, अपना हठ छोड़ दो, क्षमा करो, एक हो जाओ पूरी कलीसिया, और देखो इस साल के अंत में प्रभु हमें आशीष देगा, अभिषेक से भरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सामर्थ्य से भरना है, अभिषेक से भरना है, आनंद खुशी से भरना है। तो ये सब करेंगे हम लोग, और ये आने वाला साल 2021 हो सके, मैं नहीं जानता हूं कोई दिन या कोई साल, लेकिन समय और चिन्ह दिखा रहे हैं कि इस तरह से यीशु के आने का समय बहुत निकट है। अगर आप विश्वास करते हैं, और अगर आप उन लोगों में से हैं जो यीशु के आने के बाद जोने वाले हैं, तो आप न्यायी और धर्मी मनुष्य हैं, क्योंकि जो यीशु के आने के बाद जोते हैं, दे विल रिसीव द क्राउन ऑफ राइचियसनेस। हालेलुया। जितने भी लोग यीशु के आने के बाद जोते हैं ना, वो लोग को राइचियसनेस का, महिमा का, इसका मुकुट मिलेगा, धार्मिकता का मुकुट मिलेगा, जैसे बाइबल कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। सो अगर आप सचमुच यीशु के आने का राह देखने वाले हैं, तो अपने आप को उस तरीके से तैयार करो, और प्रभु के सामने झुको, अपना मुकुट छोड़ दो, अपना घमंड अहंकार छोड़ दो, और एक दूसरे से साथ मिलकर रहो, और परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। हम मिलेंगे गुरुवार शाम को 7:30 बजे अपनी नई जगह पर, और प्रार्थना में सब लोग बने रहना। हम लोग प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। सारा आदर और महिमा, सम्मान केवल और कलम तुझे देते हैं प्रभु पिता। जो भी आज बात करने के लिए अनुग्रह किया, और जो शब्द तूने दिए तेरे वचन को समझाने के लिए, मेरी कोई योग्यता नहीं कि मैं कुछ तेरे पवित्र वचनों को अपने मुंह से ले लूं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करता हूं कि जो वचन तूने भेजे, उन वचनों के अनुसार प्रभु परमेश्वर तेरे इस अद्भुत स्वरूप को और इस चीज को देखकर प्रभु हमारा विश्वास और भी बढ़ा दे, और हम वैसे ही आराधना और भक्ति भी करें प्रभु पिता। सारा आदर और महिमा सम्मान तुझे देते हुए प्रभु परमेश्वर, जो भी लोग तेरे भंडार में इस समय भेंट अर्पण करेंगे, जो ऑफरिंग बॉक्स उनके पास है, और जो भी अपने ऑफरिंग या प्रभु दान दशमांश देंगे, उन सबको आशीष दे, और उनका काम धंधा नौकरी तो उनके लिए आशीष की बना दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हमेशा बनी रहे। सब लोग कहे आमीन। ആത്മാവേ കർത്തൃ സ്തോത്രി, നാമത്തെ സ്തോത്രി, ആത്മാവേ കർത്തൃ സ്തോത്രി, കർത്തർ ചെയ്ത Amen. ഹല്ലേലൂയ, Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ.